भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर 100 दिनों के अंदर 6 जमानतों पर अमल आवारी का वादा पूरा न करने पर तनकीद की। केटीआर ने लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर एक अवामी जलसे को मुखातिब किया और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की कि चीफ मिनिस्टर ने 100 दिनों में 6 जमानतों पर अमल आवारी का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एक भी घर फलाह स्कीमात से फायदा नहीं उठा पाया है। केटीआर ने अवाम से कहा कि अगर कांग्रेस कायदीन वोट लेने आए तो वो 6 जमानतों के निफाज से मुताल्लिक़ उनसे सवाल करें। బ్యాంకు 2 లక్షలు బ్యాంకు రుణమాఫీ చేసిన వాళ్ళందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఎమ్మడే బ్యాంకు 2 లక్షలు తెచ్చుకోండి. జనవరిలో డిసెంబర్ 9 నాడు నేను రాగానే మాఫీ చేస్తా. ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు ఏమనుకుంటున్నాడంటే రుణమాఫీ చేసిన ఓట్లు నాకు పడతాయని. నేనేం చెప్తున్నా రుణమాఫీ అయిన వాళ్ళందరూ ఎమ్మడే పోయి మళ్ళీ 2 లక్షల రుణం తెచ్చుకోరు. డిసెంబర్ 9 నాడు నేను అవి మాఫీ చేస్తా. కాబట్టి రైతులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఎప్పుడు పెన్షన్ తీసుకుంటే 2000 వస్తుంది, కానీ ఒక్క నెల వాయిదా పడ్డదంటే వచ్చే నెల మేము 4000 ఇస్తాం. మా అక్కలకు మా పెద్దమ్మలందరికీ నేను చెప్తున్నా, వచ్చే నెల నుంచి ఇంటి కరెంటు బిల్లు కట్టాల్సిన పని లేదు. మీ కరెంటు బిల్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టది. ₹1 కూడా కరెంటు మీకు కట్టాల్సిన పనే లేదు. టీవీ పెట్టుకోవచ్చు, ఫ్యాన్ వేసుకోవచ్చు, మంచిగా బాజాప్తా కరెంటు బిల్లు లేకుండా మీరు గృహలక్ష్మి పథకం కింద మీకు కరెంటు బిల్లు వస్తుంది. ఇప్పుడు తీసుకుంటే 10,000 వస్తుంది రైతు బంధు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే 15,000 వస్తాయి. రుణమాఫీ చేసిన వాళ్ళందరినీ విజ్ఞప్తి ఇవన్నీ మీరు ఇప్పటికే చూసే ఉంటారు మీరు. కానీ మీకు ఎందుకు చూపెడుతున్నా మళ్ళీ అంటే, మనం ప్రజలకు మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 4,000 పెన్షన్ ఇస్తా అన్నాడు. 4,000 ఒకటే మాట చెప్పలేదు. కేసీఆర్ ఒక్క ముసలమ్మకి ఇస్తున్నాడు, లేదా ముసలయ్యకి ఇస్తున్నాడు. మా ప్రభుత్వం వస్తే ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు. కానీ ఏం జరిగింది? జనవరి నెల 2,000 పెన్షన్ కూడా ఎగ్గొట్టిండు. జనవరి నెలలో 46 లక్షల మందికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 46 లక్షల మందికి టోపీ పెట్టింది. 2,000 రూపాయలు కూడా ఇవ్వలేదు. 4,000 సంగతి దేవుడు ఎరుగు, 2,000 కూడా ఎగ్గొట్టినోడు రేవంత్ రెడ్డి. అందుకే చెప్పవలసిన బాధ్యత, అడగవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. రుణమాఫీ జరిగిందా? ఆయన చెప్పినట్టు డిసెంబర్ 9 నాడు 4,000 వచ్చిందా? 2,000 పెన్షన్ పై 4,000 ఇస్తానడు వచ్చిందా? ముసలమ్మకు ముసలయ్యకి ఇస్తానడు వచ్చిందా? 10,000 పోయి 15,000 ఇస్తానడు వచ్చిందా? తులం బంగారం వచ్చిందా? స్కూటీ వచ్చిందా? ఏది జరగలేదు. కాబట్టి నా విజ్ఞప్తి మీతో, ఈ మాట మన వరకే పెట్టుకోకుండా, మనది మనమే చెప్పుకోకుండా 10 మందికి చెప్పవలసిన బాధ్యత, 10 మందికి గుర్తు చేయవలసిన బాధ్యత. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఓటు అడగడానికి వస్తే వాళ్ళకు అవసరమైతే వచ్చిన ప్రజలే చూపెట్టేటట్టు ఉండాలి. ఈ వీడియో వచ్చింది, దీని సంగతి చెప్పు ముందు అని అడిగేటట్టు ఉండాలి. అట్లయితే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు డోర్ టు డోర్ తిరగని కూడా భయపడే పరిస్థితి వస్తుంది. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर पार्लिमानी उम्मीदवार वेली चला राजेंद्र राव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर हल्के की फलाह बहबूद और मसाइल के हल के लिए कांग्रेस के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के भीमा देवरापल्ली मंडल के मलकानूर में करीमनगर उम्मीदवार वेली चला राजेंद्र राव की तायद में मुनक्किद रैली और फिर मलकानूर चौराहे पर मुनक्किद एक कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान दीगर पार्टियों के कई कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पूनम प्रभाकर ने अपने खिताब में 13 मई के पार्लिमानी इंतखाबात में करीमनगर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर करीमनगर हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाते हैं तो जिले के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे और फलाह बहबूद के इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा असम्बली हल्के के
महल्ले जात ने घर घर मजलिस मुहिम चलाकर राय दहिंदों से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। AIMIM उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा MLA जाफर सनमिराज के हमरा संतोष नगर, जवाहर नगर, ओवैसी कॉलोनी, MB हर्ट्स, पीली दरगाह, हाथी कमान, दरगाह बरानी शाह, खलंदर नगर और हुस्नाबाद व दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए 13 मई को लोकसभा इंतखाबात के मौके पर AIMIM के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने और हैदराबाद पार्लिमानी हलके से उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स, इब्तिदाई सदर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। अवाम उन्नास ने सदर मजलिस को यकीन दहानी करवाई है कि वो AIMIM के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आप तमाम अहलिया ने महिला से गुजारिश करने आया हूँ 13 मई को मजलिस वोट देकर कामयाब करिए। पतंग का निशान है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। अपने के वोट को इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अपने पार्लियामान को मुंतखब करिए। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी व बानी सदर नशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने अकबर ओवैसी जूनियर कॉलेज बंडलागोड़ा के साल अव्वल के तलबा से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से KG तक PG कैंपस बंडलागोड़ा, अकबरुद्दीन ओवैसी जूनियर कॉलेज जमाल कॉलोनी रियासत नगर, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस हाफिज बाबा नगर और फख्र मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस मोगलपुरा में इंटरमीडिएट के तलबा को मुफ्त ट्यूशन फराहम किए गए थे। इस ट्यूशन के जरिए तलबा व तालिबात ने इंटर इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कामयाब तलबा व तालिबात से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने कामयाब तलबा व तालिबात से मुखातिब होते हुए उन्हें अपने ज़रीन मशवरों से नवाजा और अपनी तरक्की को ज़वाल न बनने देने, माँ बाप का एहतराम करने, असातिज़ा की इज्जत करने, नमाज की पाबंदी करने और मजलूम की मदद करने का मशवरा दिया। भी
तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नतीजे जारी कर दिए गए। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुर्रा वेंकटेशम ने मंगल को बशीरबाग में वाक़े SCERT के दफ्तर में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नतीजे जारी किए। इस साल 10वीं के सालाना इम्तिहानात 18 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक़िद किए गए थे, जिनमें 5,08,385 तलबा ने शिरकत की थी। उनमें से 2,57,952 लड़के और 2,50,433 लड़कियां थीं। लड़कियों ने हर बार की तरह इस बार भी लड़कों पर सबकत हासिल की है। 10वीं जमात में 93.23% लड़कियों ने कामयाबी हासिल की, जबकि लड़कों की कामयाबी का फीसद 79.42% रहा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से SSC सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 3 जून से 13 जून तक मुनक़िद किए जाएंगे। सिकंदराबाद के पार्लिमानी उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने सनत नगर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। खैरताबाद MLA व सिकंदराबाद के पार्लिमानी उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने मंगल को सनत नगर असम्बली हल्के के सनत नगर डिवीजन के महल्लात में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़, रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती वोट देकर वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सनत नगर इंचार्ज कोता नीलमा, दीगर कांग्रेस कायदीन और ख़वातीन कारकुनान ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के BRS उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रुकने पार्लियामेंट के तौर पर जीत जाने पर वो हमेशा आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे और उनकी खिदमत करेंगे। BRS उम्मीदवार गदम श्रीनिवास यादव ने चंपापेट के समा सरस्वती गार्डन में हल्का इंचार्ज समा सुंदर रेड्डी की क़यादत में मुनक़िद इजलास में शिरकत की और पार्टी कारकुनान को TRS पार्टी की जीत के लिए 13 दिन तक मेहनत करने की तलकीन की। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर 6 जमानतों के नाम पर आवाम को धोखा देने और BJP कायदीन की जानिब से JSR के नाम पर वोट मांगने पर नुक्ताचीनी की। BRS उम्मीदवार ने कहा है कि अगर वो हैदराबाद हल्के से जीत जाते हैं तो वो लोगों की खिदमत करेंगे और हल्के की आवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे। साबिक कॉरपोरेटर स्वप्ना रेड्डी, डिवीजन प्रेसिडेंट M भास्कर रेड्डी, माइनॉरिटी लीडर आजम अली वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने हैदराबाद लोकसभा हल्के के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताईद में घर घर मजलिस मुहिम चलाई। कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने मंगल को कुतुबशाही मस्जिद, लंगर हाउस, कुतुबशाही बस्ती, अल-फतह बस्ती, मैजेस्टिक हॉस्पिटल, पेंशनपुरा, गोल्डन जुबली स्कूल और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने राय दहिंदों से घर घर पहुंचकर मुलाकात की और उनसे 13 मई को पतंग के निशान को वोट देकर बैरिस्टर ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया।
हैदराबाद हल्के पार्लिमान के AIMAP उम्मीदवार जॉन मस्क ने मलकपेट हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए AIMAP पार्टी को वोट देने की अपील की है। 13 मई को मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात में AIMAP ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से जॉन मस्क को उम्मीदवार नामजद किया है। जॉन मस्क ने मंगल को मलकपेट हल्के के महल जात में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए कहा कि 40 सालों में सियासी जमातों ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने पल्लू बस्ती के मकीनों से कहा है कि अगर वो अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो लोकसभा इंतखाबात में AIMAP को वोट देकर कामयाब बनाएं। शहर हैदराबाद के जामिया दारुल फुरकान लिल बनात का 35वां सालाना जलसा तकसीम असनाद व इनामात का इनेकाद अमल में आया। जामिया की तालिबात ने अपनी तकारीर के जरिए हिंदुस्तान के लोगों को अमन व अमान बरकरार रखने और अहले इस्लाम को कौल व अमल के जरिए इस्लाम की तालीमात पेश करने का पैगाम दिया। जामिया दारुल फुरकान लिल बनात वाक़ सैदाबाद का 35वां सालाना जलसा तकसीम असनाद व इनामात बराए तालीमी साल 2023-24 महाराजा फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया। इसकी सदारत फजीलतुल शेख असगर अली इमाम मेहदी अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस दिल्ली ने की। नायब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस दिल्ली हाफिज अब्दुल क़य्यूम हिफ्ज़ुल्लाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मुक़र्रर खुसूसी के तौर पर फजीलतुल शेख अब्दुल रहीम जामे सिगरी हिफ्ज़तुल्लाह अराकीन जामिया वो मौलिमा तालिबात और कसी तादाद में मर्द ख़वातीन इस मौके पर मौजूद रहे। जलसे का आगाज़ डिप्लोमा अव्वल की तालिबा की तिलावत कुरान से हुआ। उसके बाद एक नज़्म पेश की गई। जलसे में 27 तालिबात ने तालीमी मुज़ाहरा पेश किया। अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बानों में मुख्तलिफ अनादीन पर तालिबात जामिया ने अपनी तकरीर पेश की और ये पैगाम दिया कि प्यार मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम लोग अमन व अमान की फ़िज़ा को कायम व बरकरार रखें और अहले इस्लाम अपने कौल व अमल के ज़रिए इस्लाम की तालीमात को पेश करें ताकि इस्लाम की सच्चाई वतनी भाई बहनों के सामने वाज़ेह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल वहीद बड़ी खुशी और मसरत के साथ ऐलान करता हूँ कि आज हमारी जामिया दारुल फुरकान लिल बनात सईदा हैदराबाद का 35वां सालाना जलसे का इनेकाद अमल में आ रहा है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जलसे में शरीक होने की कोशिश करें। साथ ही साथ ये जामिया आज 35 साल से तालिबात की खिदमत करते आ रहा है और आप सबकी सरपरस्ती की बुनियाद पर ये जामिया अपने तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप अपनी सरपरस्ती क़ायम रखें और जामिया की तरक्की में हिस्सा लें। सलाम अहमद अल्हम्दुलिल्लाह ये 35वां सालाना जलसा मनाया जा रहा है। हम सोचे भी नहीं थे कि अल्लाह का फजल और करम और आप तमाम लोगों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से ये जलसा कामयाब रहा और अल्लाह के फजल करम से जो कायम करते वक्त तौक़ीर दिन सब ज़्यादा इसमें ताउन किए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो 35 साल का सोचे भी नहीं थे लेकिन अल्लाह मुकम्मिल करा है। अल्लाह का एहसान है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये ताक़यामत तक इदारा चलता रहे और सदर मोहतरम भी की वजह के नाज़िम तालीमात का भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और असातिज़ा मौलमीन मौलमात का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी। IMD हैदराबाद ने 4 मई तक तेलंगाना में दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इंतबाह देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। तेलंगाना में 46 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। IMD हैदराबाद ने 4 मई तक शदीद गर्मी की लहर रहने की वार्निंग दी है। रियासत के अजला हैदराबाद, आदिलाबाद, कुमराम भीमा आसिफाबाद, मंचियाल, जगतियाल, राजन्ना सरसला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगोंडा, हनमकुंडा, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती व दीगर में
4 मई तक गर्मी की शदीद लहर रहेगी। दर्जे हरारत 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज को हैदराबाद निज़ामुराबाद सऊदी अरब में रिहाइश मुहैया करवाने के लिए खुरानंदाजी की गई। तफसीर इकबाल IPS स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना की ज़ेर निगरानी चौमहला पैलेस वाक़ खिलवत में आज़मीन हज को हैदराबाद निज़ामुराबाद सऊदी अरब में रिहाइश के लिए खुरानंदाजी की गई। रियासत तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुल 213 आज़मीन का इंतखाब हुआ है, जिन्हें रुबात में क़याम की सहूलत मुहैया करवाई जाएगी। रुबात की सहूलत मिलने पर फी आज़िम तकरीबन 50,000 रुपये की बचत होगी और हज कमेटी की जानिब से उस रकम को वापस कर दिया जाएगा। खुरानंदाजी के मौके पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के CEO शेख लियाकत हुसैन व दीगर मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं हमारे जनाब तफसीर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ है आज, और फैज़ भाई और हमारे लियाकत भाई और सैयद साहब और हमारे शरीफ साहब, इरफान शरीफ साहब, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग मेरी काफ़ी मदद करे कि आज यहाँ हम इस मुकाम पे पहुँचे कि एक ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से थोड़ा सा दुश्वारी हज कमेटी की तरफ से हुई, सॉफ्टवेयर रेडी नहीं था। हम फिर प्रोड्यूस करें अपना सॉफ्टवेयर जो कि अगेन फेयर है, बट आई प्रॉमिस करें नेक्स्ट ईयर वो फिर सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा तो फिर प्योर हज कमेटी के सॉफ्टवेयर से करेंगे। ये साल हम लोग 543 की तसरीह हासिल करें। और मैं एज ए नाज़िर बोलना चाहूँगा कि मेरा काम खाली तसरीह हासिल करना नहीं है जो मैं अक्सर सुनता हूँ। मेरा काम 1 महीना मेरे प्यारे हाजी साहिबान जो आएंगे 543 उनकी मैं खिदमत 1 महीना करूँगा वहाँ पे। मैं, मेरी औलाद, मेरा टीम उनको इस्तेकबाल करेगा। उनके पास वहाँ पे आपके लिए जो जगह पे चुने हम लोग वो फोकस में रख के चुने के जो अपने हाजियों को सहूलत दें। फर्स्ट, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अजीजिया फ्रॉम हरम। और हज कमेटी के जितने बिल्डिंग्स है उसमें सबसे हरम से करीब ये है। 3 मिनट का वॉक है बस स्टैंड, 4 मिनट का वॉक है हज मिशन, एक 7 मिनट का वॉक है 400 बेड्स का हॉस्पिटल, और मीना आप पैदल जा सकते हैं। और किचन फैसिलिटी मेरे लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि हम लोग किचन फैसिलिटी को इंपॉर्टेंस इसलिए दिए कि अपने लोग गैस सिलेंडर पे रोटी बनाना वो ख्वाहिश मेरी थी, तो हम जो बिल्डिंग लिए उसमें गैस सिलेंडर्स और उनको रोटी बनाने के लिए पूरे फैसिलिटीज देंगे। नीचे मार्केट है तो उन लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि मैं पर्सनली उन लोगों को मैं वादा करता हूँ कि पर्सनली उनको 1 महीना मैं आंखों पे रखूंगा और उनकी हर तकलीफ दूर करूंगा। हर जो 50 साल के ऊपर है उनको मैं फोकस में रखूंगा, उनकी सेहत देखूंगा, उनके रहने का 1 महीने का जो पूरा प्रोजेक्ट है पूरा लेके एयरपोर्ट से वापस भेजूंगा इंशाल्लाह। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान में कौमी सतह पर तीसरा रैंक हासिल करने वाली तेलंगाना की अनन्या रेड्डी ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से फर्जी अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली यूपीएससी की 3rd रैंकर अनन्या रेड्डी के नाम से इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुतादिद अकाउंट्स बनाए गए हैं। अनन्या रेड्डी ने उनके नाम का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि चंद चैनल्स उनके नाम से मेंटरशिप प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और इसके लिए पैसे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिससे यूपीएससी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस से इस सिलसिले में मदद तलब करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
एसओटी माधापुर और रायदुर्गम पुलिस ने एक मकान पर छापा मारते हुए जुआ खेलने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 62,620 रुपये जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक के माधवी नामी एक खातून जो कि खाजागुड़ा के अटलांटिक अपार्टमेंट में रहती है, पिछले कुछ अरसे से गैर कानूनी तरीके से जुआ खाना चला रही थी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहां पहुंचकर जुआ खेल रहे थे। एसओटी माधापुर और रायदुर्गम पुलिस ने इसका इल्म होने पर खातून के मकान पर छापा मारा। वहां पर 9 ताजिर जुआ खेलते हुए पाए गए। पुलिस ने उन ताजरीन को हिरासत में लेकर 62,620 रुपये नकद रकम, 11 मोबाइल फोन व दीगर अशिया जब्त की हैं। रायदुर्गम पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। कागजनगर शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान हामिला खातून और उसकी बेटी की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक कागजनगर शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान श्री दुर्गम श्वेता नामी एक हामिला खातून और उसकी बेटी की मौत हो गई। लवाकिन ने अस्पताल के सामने नाश रखकर डॉक्टरों की गफलत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया और डॉक्टरों की जानिब से गफलत बरतने पर तशवीश का इजहार किया। कागजनगर पेट्रोल पंप की सड़क पर नाशों के साथ अहले खाना की जानिब से एहतजाज करने के बाद सड़क पर ट्रैफिक जैम देखा गया। रियासत कर्नाटक के बेंगलोर में मां बेटी के एक दूसरे पर चाकुओं से वार करने का वाकया पेश आया। इस वाकये में बेटी की मौत हो गई जबकि मां शदीद जख्मी हुई है। जराये ने बताया कि बेंगलोर के बंशकरी से ताल्लुक रखने वाली साहिनी को इंटर इम्तिहानात में कम नंबर मिले, जिस पर मां पद्मजा ने बेटी को डांटा। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दोनों ने चाकुओं से एक दूसरे पर वार कर दिया। इस हमले में बेटी की मौत हो गई जबकि मां शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। मुताल्लिका पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज किया है। रियासत केरला के कन्नूर में एक दिलखराश सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक कन्नूर के कन्नापुरम में एक लॉरी और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जिनमें एक बच्चा भी शामिल है मौके पर ही हलाक हो गए। कार तलासेरे से कसारागुड़ा की तरफ जा रही थी कि यह दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।